Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear sisters. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 245 onwards. تلاوت ہوگی، آپ سب قرآن کھول لیجئے. اس سے پہلے درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم صدق اللہ العظیم. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. چلے، پریویس کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے آیت 245 کو ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں من ذا الذی، کون ہے وہ جو، کون یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضاً حسناً، بہت ہی خوبصورت قرض. جسٹ امیجن کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے؟ aren't we lucky enough, we are luckier کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے، اور اگر میں اللہ کو قرض دوں تو یہ میرے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کو قرض دے رہی. isn't it? الحمدللہ. اور وہ بھی کیسا قرض؟ بیوٹیفل قرض. اسے بیوٹیفل قرض کیوں کہا گیا؟ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں 3 پوائنٹس بتائی تھی کہ یہ قرض بیوٹیفل حسناً کیسے بنتا ہے. کون سے 3 پوائنٹس ہے شمیم؟ جی باجی. کون سے 3 پوائنٹس؟ قرضہ حسنہ کے 3 امپورٹنٹ ریکویزٹس ہے.
وہ مال پاک اور حلال ہو، دل کی خوشی سے اور خالص نیت سے دیے ہو، اور قرض حسنہ دینے کے بعد کوئی احسان نہ جتائے۔ ہاں، تو وہ قرض بن جاتا ہے قرض حسنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا پرومس کیا ہے، گارنٹی دی ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، پھر اللہ جو ہے اس قرض کو، اس اماؤنٹ کو بڑھا کر دے گا، تم اضافہ کر دے گا اس میں، اضعافاً کثیرہ، کتنا اضافہ، کتنا انکریمنٹ، بہت زیادہ۔ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ واللہ یقبض، اب یہ جو ہے نا، یہ ہمارے لیے تھوڑی فکر کی بات ہے کہ اللہ جو ہے نا، یقبض و یبسط، یہ دونوں اپوزٹس ہیں۔ یقبض میں قبض ورڈ آتا ہے، قبضے میں لے لیتا ہے، تو کوئی کسی چیز کو قبضے میں لینے کے لیے ہم اسے اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں، رائٹ ہے نا۔ یقبض، I can see Salma, you can unmute yourself. تو مٹھی میں لیتے ہم کسی چیز کو، یعنی کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے قبضے میں ہے، برابر، رائٹ۔ تو یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے واللہ یقبض، قبضہ، قبضہ ورڈ نظر آئے آپ کو؟ کاف بے دعا۔ ہاں، تو اللہ تعالی یا تو قبضے میں لے لیتا ہے، یا تو اس کا اپوزٹ ہے وَيَبْسُطُ، بسوتا کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، یعنی مٹھی کو کھول دینا۔ اوکے، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں اپنے بندوں کے ساتھ، یا تو ان کا مال مٹھی میں لے لیتا ہوں، یعنی لمیٹڈ کر دیتا ہوں، اسے نہیں بڑھنے دیتا، اور یا پھر اسے کھول دیتا ہوں، یعنی خوب بڑھا دیتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لوٹ کر تو تمہیں اللہ ہی کے پاس آنا ہے، اللہ ہی کے پاس لوٹائے جاؤ گے، تب تم اپنا دیا ہوا قرض اللہ سے واپس لے لینا۔ سبحان اللہ، دیٹ مینس تمہارا قرضہ کہیں نہیں جائے گا، وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ملٹی پلائی ہوگا، دنیا میں بھی ملٹی پلائی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، دیٹ مینس وہ ہمیشہ بڑھتا ہے، اور وہ بھی کس کو دے رہے، اللہ کو۔ قرآن پاک میں ہمیں آگے ایک آیت ہم پڑھیں گے، اور وہ بہت ہی بیوٹیفل آیت ہے، اللہ کی ہر آیت بیوٹیفل ہے، لیکن کچھ آیتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اس طرح دل کو چھو جاتی ہے۔ تو بہت سی آیتیں میری فیوریٹ ہوتی ہے، اور آپ لوگ سوچو گے کہ باجی بار بار کہتے رہتے ہیں کہ یہ فیوریٹ ہے، وہ فیوریٹ ہے، لیکن جب اس آیت کو ہم پڑھیں گے نا تو آپ کی بھی فیوریٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو وہ آیت کیا کہتی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ ان لوگوں کا ایگزامپل، مثال، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اونلی فار اللہ، ناٹ فار شو آف، تو ان کا ایگزامپل ایک دانے کے جیسا ہے، دانا، ون سیڈ، جو دانا زمین میں بویا جاتا ہے، when the seed is sown in the earth، تو اس ایک دانے سے، اب فار ایگزامپل گیہوں کا دانا ہے، ہاں، ویٹ سیڈ، اس کو جب زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ جب اس کا پودا اگتا ہے نا، اس کا پیڑ نہیں ہوتا، پودا ہوتا ہے نا، کراپ، تو اس ایک پودے پر، ایک ڈنڈی پر کم سے کم 70 بالیاں لگتی ہے، 70 گچھے ہوتے ہیں، 70 گچھے، اور ہر گچھے میں، ہر بالی میں کم سے کم 100 دانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھے ہو گیہوں کا جو کراپ ہوتا ہے تو ہر گچھے میں 100 دانے، اور ایسے کتنے گچھے، 70، تو کتنا ہو گیا، ایک دانہ بویا تھا
उस एक दाने से उसको कितना मिला, आप सोचिए, एक दाने से कितना मिला, 70 मल्टीप्लाइड बाय 100, या 7 गुच्छे भी 7 अगर हो, या अगर 7 गुच्छे हो, सिर्फ 7 बालियां, तो 7 बालियां मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कितना हो गया, 700। तो एक दाने से 700 दाने मिल गए। ये कैसा प्रॉफिट है, ये कैसा बिजनेस है अल्लाह का, कि दुनिया में भी देखते हो ना आप, कि जो फार्मर्स एक दाना उगाते, एक दाने से उसको 700 दाने मिल गए, वैसे ही जो अल्लाह की राह में 1 रुपया, 1 लुकमा, 1 खजूर, जो कुछ अल्लाह की राह में वो सदका करेगा, तो उसे अल्लाह ताला उसी तरह मल्टीप्लाई करके देंगे। ये कैसा सौदा है, घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है, बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अच्छी मिसाल है। अब आप मुझे बताएं कि है ना आपकी भी फेवरेट बन गई ये आयत, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये तो अल्लाह का प्रॉमिस है कि वो सदका देने वाले को बहुत ज्यादा बढ़ा कर देता है, और अल्लाह राजी भी हो जाता है उन लोगों से। और हमने पढ़ चुके हैं कि वो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे वो लोग जो अपने दाएं हाथ से माल खर्च करते हैं और बाएं हाथ को पता भी नहीं चलता। आपको पता है ना, 7 टाइप ऑफ पीपल अल्लाह के अर्श के साए में होंगे कयामत के दिन, क्योंकि कयामत के दिन सूरज कहाँ होगा, बिल्कुल सवा नेजे पे, अपॉन योर हेड्स, और पसीने में डूबा होगा हर एक। उस दिन कोई साया नहीं होगा। तो उस दिन वो 7 तरह के लोग जिनको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, दोज चोजन पीपल, उसमें से 1 टाइप वो है जो अपने राइट हैंड से सदका देते हैं। ऐसा सदका देते हैं कि उनके लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलता, यानी वो शो ऑफ नहीं करते, सिर्फ अल्लाह की खातिर देते। और क्या ये कोई मुझे समझाएगा कि ये सदका कैसा हुआ कि राइट हैंड से दो तो लेफ्ट हैंड को पता ना चले? कोई समझा पाएगा? कुछ समझ में आया किसी को? बाजी कैन आई ट्राई? यस शमीम। बाजी जिसमें रियाकारी ना हो, शो ऑफ ना हो, वो हाँ, ये वो तो टाइप का। वो तो बोल दिया मैंने, बट राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड से कुछ समझ में आ रहा है क्या? किसी को समझ आ रहा है? आफरा? मैं ट्राई करूं? हाँ सलमा बोले। बाजी पहले लेट आफरा स्पीक फर्स्ट। हाँ आफरा बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, बोले। जी जो बंदे को हम देते उसको और अल्लाह के सिवा हम तीनों के सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए भाई। ओके ओके, लेकिन मुझे अभी भी वो आंसर नहीं मिल रहा है। सलमा आपको ट्राई करना था क्विकली। जरीना? बाजी जिसको हम दिए ना उसको भी पता नहीं चलना चाहिए कि किसने उसकी मदद की है। नहीं, तो वो उसका लेफ्ट हैंड थोड़ी हुआ। जिसको आपने दी वो आपका लेफ्ट हैंड है क्या? नहीं है। देखिए वो हदीस क्या कहती है कि मैं अपने राइट हैंड से दूं तो मेरे लेफ्ट हैंड को पता ना चले। तो मुझे भी ये बात समझ नहीं आती थी, और एक टीचर है हमारे, नाहिद टीचर, तो उन्होंने एक बार मुझे बताई ये बात और मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखिए, जब आप अपना पर्स खोलते हो ना पैसा देने के लिए, और फिर आप पैसे निकालते हो, तो आपको पैसा गिनना पड़ता है ना। तो गिनने के लिए आप दोनों हैंड्स यूज करते हो टू काउंट द नोट्स। So when you are counting the notes, you are using your left hand as well along with your right hand. लेकिन जिसने अपनी जेब में या पर्स में राइट हैंड डाला और जो भी हाथ में आया वो उठाकर दे दिया, लेफ्ट हैंड की हेल्प भी नहीं ली उसे काउंट करने के लिए, ये है कि राइट हैंड से दिया और लेफ्ट को भी पता नहीं चला। नाउ यू एग्री विथ मी? अल्हम्दुलिल्लाह, इसे कहते हैं अल्लाह की खातिर, खालिस नियत।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप सोचिए कि अल्लाह भी देख रहा है ना कि ये बंदे ने तो गिने भी नहीं, जो हाथ में आया उठा के दे दिया। आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला उसे कैसे नवाजेगा। सुभान अल्लाह, क्यों ना नवाजे, क्यों ना उसे अपने अर्श के साए में जगह दे, isn't it? तो ये है मेरे और मेरे अल्लाह के बीच का मामला। जब हम सदका देते हैं ना, तो एक्चुअली देखिए, अगर आपके पास कोई आए ना हेल्प मांगने के लिए, तो आपको पहले ना ऊपर देखना है, आसमान की तरफ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और अल्लाह से कहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इस बंदे को तूने मेरे पास भेजा। ये किसी के भी पास जा सकता था हेल्प मांगने के लिए, बट ये बंदा मेरे पास आया, ये तेरे हुक्म से आया है, तो तूने मुझे चुना है, अब तू ही मुझसे ये काम करवा दे। मेरी कैपेसिटी में हो ना हो, आई डोंट नो, यू चोज मी टू हेल्प दिस पर्सन, नाउ यू हेल्प मी टू हेल्प दिस पर्सन। ये दुआ करे अल्लाह से और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने आपको मौका दिया है। और एक बहुत बड़ा शुक्र अदा करना है कि अल्लाह, ये बंदा मांगने वाला है और तूने मुझे देने वाला बनाया है। या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि अगर इस वक्त सिचुएशन उल्टी होती, इफ इट वाज वाइस वर्सा, तो मेरी क्या हालत होती। अगर मैं इसकी जगह मांगने वाली होती तो मेरी क्या हालत होती। अल्लाह तेरा कितना शुक्र अदा करूं मैं। तो ये है कि हमारे दिल नर्म होने चाहिए देने वाले बनकर। हमारा तो उल्टा ही हिसाब है, हम किसी को देते हैं तो अकड़ जाते हैं, एहसान जताते हैं, उस पर उसको डांटते हैं कि बार बार आ जाते हो मांगने के लिए। अल्लाह अकबर, क्या मैं नहीं मांगती रोज मेरे अल्लाह से बार बार? अगर अल्लाह भी मुझे इसी तरह धुतकारे तो नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम कुरान। ये नहीं कि एक आयत पढ़ लिए आगे बढ़ गए, एक पारा पढ़ लिए आगे बढ़ गए। जब तक मेरा दिल नर्म नहीं पड़ता, जब तक मेरे एहसास नहीं जागते, जब तक ये कुरान मेरे अमल में नहीं आता, तब तक हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इट इज नॉट वर्किंग अंटिल देन। सो जैसे वो वाकया पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में, हजरत अबू दहदा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु का, कि पूरा बाग उठा के उन्होंने दे दिया और फिर उस बाग में एंटर भी नहीं हुए, क्योंकि वो बाग उनका अब उनका नहीं रहा। बिल्किस आंटी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? ओके, अब ये जो आखिरी में आया ना, हाँ बिल्किस आंटी बोलिए। किसी ने हम पर मांग कर एहसान किया। अगर किसी को हम देते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि किसी ने हमको मांग कर हम पर एहसान किया है। बेशक बेशक, और अल्लाह ने मुझे चुना, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। ओके, अभी ये लास्ट पार्ट पे आते इस आयत के कि अल्लाह सुब्हानहू ताला या तो मुट्ठी में ले लेगा या तो बढ़ा देगा। तो ये क्या होता है, ये क्या कंसेप्ट है? इसमें ये बात समझ में आती है कि अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है कि तुम सदका करो। अगर तुम सदका नहीं करोगे तो क्या होगा? तो अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह भी अपना हाथ रोक लेगा। तुम अपना हाथ रोक लोगे सदका करने से, कर्जे हसना देने से, तो अल्लाह भी अपना हाथ रोक लेगा। और तुम अपना हाथ खोलोगे, अपनी मुट्ठी खोलोगे, अपना पर्स खोलोगे और दिल खोलोगे, तो अल्लाह भी अपना दिल खोलेगा, अल्लाह भी अपना रिस्क बढ़ाएगा। सुभान अल्लाह। और इसके रेफरेंस में इसकी दलील हमको मिलती है, प्रूफ, कि वो हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सुबह क्या होता है? दो फरिश्ते, अल्लाह सुब्हानहू ताला के हुक्म से दो फरिश्ते हर सुबह नाजिल होते हैं, और उन दोनों फरिश्तों की एक ही ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? एक फरिश्ते की ड्यूटी है
कि वो अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह देने वाले को और दे। क्या फरिश्ता दुआ करता है? या अल्लाह हर देने वाले को तू और दे, बढ़ा कर दे, ज्यादा दे। और ना देने वाले को, दूसरा फरिश्ता दुआ करता है, ना देने वाले का तू सब कुछ बर्बाद कर दे। या अल्लाह ना देने वाले का तू सब कुछ बर्बाद कर दे। ये दो फरिश्ते हर रोज यही दुआ करते हैं। और आपको पता है फरिश्तों की दुआ वो तो कबूल ही होती है। तो अब ये आपके और मेरे हाथ में है कि हम क्या करें। सुबह उठकर पहले ये फिक्र करें कि अब मैं पहले सदका किसको करूं। अगर मैं सदका नहीं करूंगी तो वो फरिश्ता मेरे खिलाफ दुआ करेगा कि अल्लाह इसका सब बर्बाद हो जाए। तो चलो अभी उठो और सबसे पहले ये फिक्र करो कि आज मैं मुझे किसको क्या देना है। सुभान अल्लाह। अगर हमारी ये नियत और अगर हमारी ये रूटीन बन जाए इंशाल्लाह, तो आप देखिए कि फिर आपके देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर अल्लाह की रहमत, हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि रोजी में बरकत नहीं है, रोजी तंग हो गई है, क्योंकि हमारे दिल तंग हो गए। हमारे दिलों को खोलेंगे इंशाल्लाह तो फिर देखिए कि कैसे अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल होती है इंशाल्लाह। So that was about this ayat. Then we move on next ayat पर। आयत नंबर 246। अभी यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा, क्या, लम नहीं, तुम, अरा देखा, क्या नहीं तुमने देखा। कहाँ पढ़ा हमने ये आयत? अलम तरा से कौन सी सूरह शुरू होती है? अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका सूरह का नाम बताइए। नाम, सूरह नहीं पढ़नी आपने। सूरह फील। हाँ ओके। और अनम्यूट करके क्विकली फिर म्यूट कर लिया करे आप लोग, ठीक है। तो अलम तरा, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा, क्या आप जानते हो, इलल मलई, इला तरफ, अल मलई, मलई कहते हैं सरदारों को, मलई कहते हैं सरदारों को, मिम बनी इसराइल, फिर से बनी इसराइल का जिक्र। सूरह बकरा की शुरुआत में बनी इसराइल का जिक्र था, अभी फिर से बनी इसराइल का जिक्र आया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा बनी इसराइल के सरदारों की तरफ, मिम बादी मूसा, मिम यानी से, बादी यानी बाद, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, इज जब, कौलू उन्होंने कहा, ये जो सरदार थे बनी इसराइल के, उन्होंने कहा, किससे कहा, ली नबी, लिए अपने नबी के। अब ये क्या कहा गया कि बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक नबी का दौर था। वो नबी कौन थे? अल्लाह ताला ने हमें नाम नहीं बताया, तो हमें भी बहुत ज्यादा क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है। फिर भी तफसीर से पता चलता है कि वो नबी यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम थे। तो ये जो बनी इसराइल थे अपने नबी से कहने लगे, उनके सरदार, लहुम, अपने नबी से, अब इब अस का मतलब क्या होता है कि अपॉइंट फॉर अस, लना हमारे लिए, अपॉइंट कीजिए, मुकर्रर कीजिए हमारे लिए, मलिकन एक बादशाह। बनी इसराइल के सरदार अपने नबी से कह रहे हैं कि ए नबी अलैहिस्सलाम, आप हमारे लिए एक बादशाह, एक लीडर मुकर्रर कीजिए, अपॉइंट अ किंग और अ लीडर फॉर अस। क्यों चाहिए उनको बादशाह?
क्यों चाहिए उनको लीडर? नुकातिल, नु यानी हम, फिर क्या बचा? कातिल, ताकि हम लड़े, ताकि हम लड़े। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, हम अल्लाह के रास्ते में जंग करें। किससे करना चाहते थे वो जंग? दुश्मनों से, ठीक है। कॉल, अभी ये कन्वर्सेशन है, कॉल अब कौन जवाब दे रहा है? देखिए कॉल में लिख लीजिए उसके नीचे ही सेड, सिंगुलर आता है, ही सेड। और ऊपर आया था कॉलू, जरा ऊपर जाइए, कॉलू आया था, लाम वाव पेश, तो ये प्लूरल के लिए आता है, दे सेड। ये कौन थे? बनी इसराइल के सरदार। दे सेड टू हुम, ली नबी, टू देयर नबी, कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करो ताकि हम लड़े अल्लाह के रास्ते में। कॉल, अभी ही सेड, तो कौन है ये ही सेड? वो नबी, इन्होंने नबी से कहा, तो जवाब कौन देगा? वो नबी अलैहिस्सलाम, उन्होंने जवाब दिया। तो अगर आप उसके नीचे नहीं लिखोगे कि हु सेड टू हुम, तो बाद में आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए लिखना जरूरी है कि ऊपर का कॉलू सरदारों ने कहा, नीचे का कॉल नबी अलैहिस्सलाम ने कहा। क्या कहा? हल असैतुम, क्या हो सकता है कि तुम, इन अगर, कुतिब फर्ज की गई, अलैकुम तुम पर, अलकितालू जंग करना, क्या ये हो सकता है कि अगर फर्ज किया गया तुम पर कितालू जंग करना, अल्लाह कि नहीं, तो कातिलू कि नहीं तुम लड़ो। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया कि क्या ऐसा हो नहीं सकता कि अगर तुम पर जंग करना फर्ज किया जाए और उस वक्त तुम लोग मना कर दो, तुम लोग इनकार कर दो कि हम नहीं लड़ते। कॉलू, तो अब कौन बोले? कन्वर्सेशन फिर से हो रहा है ना, तो कॉलू प्लूरल में आता है, कौन बोले? सरदार बोले। किससे? नबी अलैहिस्सलाम से। वह मालना, और क्या है, और क्या है, लना लिए हमारे, यानी क्या हुआ है हमको, अल्लाह कि नहीं, नुकातिल हम लड़े, ऐसा क्या हुआ है हमको कि हम क्यों नहीं लड़ेंगे, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। Why won't we fight in the cause of Allah? वक़द, और बेशक, उखरिजना, अब वो रीजन बता रहे, और बेशक, उखरिज, उखरिज पैसिव वॉइस है कि हम निकाले गए थे, ना है ना, ना यानी हम निकाले गए थे। We were driven away, we were shooed away, मिन दियारिना, कहाँ से? हमारे घरों से। इन दुश्मनों ने हमको हमारे घरों से निकाल बाहर किया था। वह अबनाइना, और हमारे बेटों को, और हमारे बेटों को भी, हमारी फैमिली को भी। फलम्मा, फिर जब कुतिब लिख दिया गया, अलैहिम उन पर, लिख दिया गया क्या मतलब क्या? कि जब वो वक्त आ गया, किस चीज का वक्त आ गया? अलकितालू जंग करने का। तवल्लौ, वो सच में फिर गए, वो पलट गए। तवल्लौ, वल्ला वल्ली वल्लू कहते हैं पलट जाने को, तो दे लिटरली टर्न्ड देयर बैक्स, वो फिर गए। इल्ला, मगर, सिवाय, एक्सेप्ट, कलीलन थोड़े, फ्यू, मिनहुम उनमें से। जब सच में जंग का वक्त आया तो मेजॉरिटी उनमें से पलट गए, सिवाय थोड़े लोगों के उनमें से। मेजॉरिटी पलट गए, बहुत थोड़े बच गए। वल्लाहु, और अल्लाह,
आलिमुन, अल्लाह कैसा है? आलिमुन, सब कुछ जानने वाला, उसको सारा इल्म है। किसको खूब अच्छे से जानता है वो? बिज़्ज़ालिमीन, ऐसे जालिमों को अल्लाह खूब अच्छे से जानता है। अल्लाहु अकबर। बड़ी आयत है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि ये क्या हुआ था। बनी इसराइल के ही लोग थे। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ऑलमोस्ट 300 to 500 ईयर्स के बाद का वाकया है कि बनी इसराइल जो है, दुश्मनों ने उनको घर से बेघर कर दिया। क्यों उन पर ये पस्ती आई? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की खूब नाफरमानियां की थी ये बनी इसराइल ने, और अल्लाह की भी खूब नाफरमानियां की थी, और उनको तौरात मिली थी, उसे ना उन्होंने उस पर अमल किया, ना उसको फॉलो किया। इसका नतीजा एज अ रिजल्ट वो दर बदर की ठोकरें खाने लगे, और दुश्मन अमालिका ने उनके शहरों पर, उनके घरों पर कब्जा कर लिया और उनको वहां से निकाल बाहर किया। तो अब ये दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे थे। आखिर में थक हार के इन्होंने अपने नबी से कहा कि अब तो हम थक गए हैं ऐसे, अब आप हमारे लिए क्या कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और आप हमारे लिए एक बादशाह हमी में से अपॉइंट कीजिए। Who were these? They were talking to the नबी। कौन जाकर बात कर रहे थे नबी से? सरदार एग्जैक्टली जो उनके सरदार थे। तो वो सरदार जो थे 2-3 गिने चुने, उन लोगों ने आपस में मीटिंग की और उन्होंने जाकर नबी से कहा कि आप जो है अब हमारे लिए एक हमी में से बादशाह चूज कीजिए, ताकि फिर वो बादशाह क्या करे, हम उससे अपना लीडर माने और लीडरशिप में फिर हम सब मिलकर उसके लीडरशिप में दुश्मन से लड़े और फिर दुश्मनों को उस शहर से निकाल बाहर करे और अपने शहर में, अपने घरों में हम वापस इज्जत से जा सके। तो आपको पता है कि जो नबी अलैहिस्सलाम थे उनको भी पता था कि ये बनी इसराइल कैसी कौम है। उन्होंने क्या कहा? नबी अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था कि अगर मैं तो कर दूंगा एक बादशाह, आई विल अपॉइंट, लेकिन जब जंग का वक्त आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग भाग खड़े हो जाओ। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों करेंगे, हम तो परेशान हो गए, हम लड़ना चाहते, इसलिए तो हम खुद आए आपके पास। सो व्हाई विल वी रन अवे? वी वोंट। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया? एक बादशाह मुकर्रर किया। वो हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत में। तो जब सच में जंग करने का वक्त आया तो मेजॉरिटी उनमें से पलट गए। ये था बनी इसराइल का तरीका। They used to never remain firm upon their words. वो अपनी जबान के पक्के नहीं थे। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? जो जबान के पक्के नहीं होते, वादे के पक्के नहीं होते, उनको इस आयत में अल्लाह ने किस नाम से पुकारा? बताओ। अभी वर्ड टू वर्ड कराया ना मैंने? जालिमीन। जालिमीन। वेरी गुड। तो अब जब हम समझ रहे हैं कि हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, हम बनी इसराइल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हर आयत को अपने आप पर रखकर देखना है कि मुझे तो जंग के मैदान में नहीं जाना है, लेकिन मैं इस आयत से क्या सीखूं कि जब मैं किसी चीज के लिए मांगती हूँ, जब मैं किसी चीज को चाहती हूँ, उसके लिए अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अपने घर वालों से मैं कोई चीज मांगती हूँ, और जब मुझे वो चीज मिल जाती है तो फिर मैं उस चीज का क्या करती हूँ? क्या मैं अपनी प्रॉमिस पूरी करती हूँ
अपना वादा पूरा करती हूँ, जो जिम्मेदारी मैं लेती हूँ उस जिम्मेदारी को पूरा करती हूँ या नहीं करती। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ या नहीं करती हूँ तो फिर क्या जालिमों में शुमार हो सकते हैं? Why not? क्या सिर्फ बनी इसराइल ही बुरे थे, गलत थे, नाफरमान थे और हम लोग दूध के धुले हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो हर आयत अपने आप पर रख के देखनी है इंशाल्लाह। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ, क्या बादशाह कौन सा मुकर्रर हुआ। जानना चाहते हैं ना आप लोग भी कि इसमें आगे क्या हुआ। तो बढ़ते हैं आगे की आयत पर। आयत नंबर 247। वक़ाल, और कहा। अब देखिए फिर से सिंगुलर में आया। अभी आपको समझ में आया कॉल और कॉलू का डिफरेंस? कॉल सिंगुलर पर्सन, ही सेड। कॉलू प्लूरल, दे सेड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक शख्स बोला और बहुत सारे बोले। तब कॉल आया तो कौन बोल रहे? नबी अलैहिस्सलाम। लहुम, लिए उनके। किससे कहा उन्होंने? नबी यूहुम, सरदारों से। हाँ, उनके नबी ने कहा सरदारों से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कद, बेशक, बअस, उसने मुकर्रर किया, उसने अपॉइंट किया। नबी अलैहिस्सलाम कभी भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक अल्लाह ने मुकर्रर किया, फिक्स किया है, लकुम, लिए तुम्हारे, तालूत नाम के शख्स को, मलिकन, एज अ बादशाह। क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम ने? कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए किसे चूज किया? तालूत को एज अ बादशाह। कौलू, तो उन सरदारों ने कहा, अन्ना, कैसे? हाउ, अन्ना, कैसे? हाउ, यकूनु, कैसे ये हो सकता है? लहू, लिए उसके। हु किसके लिए आया? तालूत के लिए। हु किसके लिए आया? तालूत के। ये कैसे हो सकता है कि तालूत बन गया अल मुलकु, बादशाह? ये कैसे हो सकता है कि तालूत को मिल गई मुल्कु, बादशाहत, अलैना, हम पर, यानी हम रह गए नीचे, हम सरदार, और ये तालूत कौन है? इसको कैसे हमारा बादशाह बना दिया? हमारे ऊपर अथॉरिटी। वो और नहनु, हम, अहक्कु, ज्यादा हकदार है। अहक्कु, हक तो समझ में आ रहा है आपको? अ जो है ना शुरू में, हमजा जबर अ, ये है ज्यादा के लिए, सुपरलेटिव। अहक्कु, हम ज्यादा हकदार है, बिल मुल्की, बादशाहत के, मिनहु, उससे। ये देखिए कंपैरेटिव हो गया कि हम उससे ज्यादा हकदार है। वी डिजर्व टू बी द किंग मोर देन हिम। वलम, और नहीं, युत, वो दिया गया। अभी देखिए वो लोग रीजन भी बोल रहे हैं, वजह बता रहे कि क्यों वो हकदार नहीं है और हम क्यों हकदार हैं। वाई डू वी डिजर्व एंड वाई ही डजंट। तो वो क्या कह रहे? वो और लम, नहीं, युत, और नहीं वो दिया गया। कौन? तालूत। नहीं तालूत दिया गया, सअतन, वुसअत। वुसअत का मतलब होता है ताकत, पावर, ज्यादा। मिनल माली, माल से, यानी उसके पास न माल है ज्यादा। कौल, उसने कहा। किसने कहा? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह,
इस्तफाहु, वो चुन लेता है, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है, हु उसको, किसको, तालूत को, अलैकुम तुम पर। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक ही जवाब है कि ये मेरी चॉइस नहीं है, ना चॉइस चलती है ना तुम्हारी चॉइस चलती है, अल्लाह ने उसे चुना है, किसे, तालूत को, अलैकुम तुम पर। वज़ादहु, अब नबी अलैहिस्सलाम भी वजह बता रहे, व्हाट इज द रीजन, व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्विजिट। उन्होंने कहा वज़ादहु, और उसने ज्यादा दी है। अभी देखिए वो तालूत की तारीफ नहीं कर रहे, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की तारीफ में फरमा रहे कि अल्लाह ने ज्यादा दिया है उसको, तालूत को। क्या ज्यादा दिया है, ज्यादा वर्ड नजर आ रहा है आपको, वज़ादहु, निशात? जी बाजी। तो फिर हम अरबिक पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं? मजा आ रहा है या नहीं आपको सीखने जी में? बाजी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, और कुछ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बाजी है ना 15-15 मिनट तो आयत का ट्रांसलेशन ही करते, तो दे फील कि इट इज लाइक इट शुड बी डन। लेकिन मुझे तो आयतों को पढ़ने में ही ज्यादा मजा आता है। भाई अल्लाह का कलाम पहले समझेंगे, अदरवाइज मैं तो 4 घंटे भी लेक्चर दे दूं, लेकिन अल्लाह के एक एक वर्ड में जो हिकमत है ना, वो मेरे वर्ड्स में नहीं हो सकती, वो किसी भी टीचर के वर्ड्स में नहीं हो सकती। इसलिए आयतों पे फोकस ज्यादा रहना चाहिए हमारा। एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग। वज़ादहु, और ज्यादा दिया है उसको, बस ततन, वुसअत, फैलाव, ज्यादती, किसमें, फिल इल्मी, इल्म में, नॉलेज में भी उसके पास ज्यादा नॉलेज दी अल्लाह ने। वल जिस्मी, जिस्म समझ में आता है, यानी जिस्मानी ताकत, फिजिकल स्ट्रेंथ। तो वेल्थ नहीं, यहाँ पर वेल्थ की बात नहीं हुई, इल्म और ताकत की बात हुई। अल्लाह ने तालूत को ज्यादा दिया है, इल्म भी, नॉलेज भी, और जिस्मानी कुव्वत, ताकत। वल्लाहु, और अल्लाह, युअती, वो अता करता है। युअती में अता वर्ड नजर आया, हमजा ताजेर, अती, अता। तो अता जी का मतलब होता है देना। हाँ, तो और अल्लाह वो देता है, वो अता करता है। मुल्कहू, अपनी बादशाहत। तो ये बादशाहत किसकी है, दुनिया की हर बादशाहत अल्लाह की बादशाहत है। और अल्लाह अता करता है बादशाहत, यानी चूज करता है बादशाह को, मैं यशाऊ, जिसे वो चाहता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसी को बादशाह बनाता है। हम क्या समझते हैं कि हम किसी को चूज करते हैं, हम किसी को वोट करते हैं? नो। वल्लाहु वासिउन, और अल्लाह कैसा है, वासिउन। अभी एक अल्लाह का नया नेम हमने आज सीखा, वासिउन, अल्लाह का नाम है बड़ी वसअत वाला। दैट मीन्स बहुत ज्यादा है अल्लाह के पास हर चीज, फैलाव, अबंडेंस। अलीमुन, सारा इल्म रखने वाला। तो ये थी हमारी आयत, इसका वर्ड टू वर्ड। अब इस आयत को देखते हैं कि क्या हुआ आगे। आयत पढ़ते पढ़ते आप लोग समझ गए कि क्या हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक अल्लाह ने तालूत को बादशाह चुना है। तो जैसे तालूत का नाम सुने, ये सारे बादशाह कंप्लेन करने लगे कि अरे ये तालूत कहाँ से बन गया हमारा बादशाह। इससे क्या समझ में आता है कि वो लोग क्या चाहते थे, वो सरदार क्या चाहते थे। वो सरदारों में से हर सरदार चाहता था कि मैं बादशाह बन जाऊं है ना, इसीलिए तो ईगो हर्ट हो गया। वो सारे सरदारों में से हर सरदार दिल ही दिल में ये चाहता था
کہ میں बादशाह बन जाऊं, तो वो सारे सरदार बाजू में रह गए और तालूत कहाँ से बादशाह बन गया। तो उन्होंने अपना क्या यहाँ पर एक्सप्रेस किए, व्हाट डिड दे एक्सप्रेस? व्हाट डिड दे एक्सप्रेस? मैं आप लोगों से इसलिए पूछती हूँ, मुझे पता है रात का टाइम है, कुछ लोगों को नींद आती है, कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं। बाजी उनका डिसअपॉइंटमेंट, सरप्राइज डिसअपॉइंटमेंट, एंड एंगर बाजी। ओके, हाँ। तो अल्लाह के डिसीजन को, उन लोगों ने अल्लाह के डिसीजन पर एतराज जाहिर किया, कि ये कैसे अल्लाह ने चूज कर लिया, किसको? तालूत को। कौन है ये तालूत? ना उसके पास माल है, ना उसके पास पावर है, कुछ भी नहीं है उसके पास, और वो कैसे बन गया हमारा बादशाह? तो देखिए नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, वो लोग कितने साबिरीन होते हैं। तो उन्होंने बहुत सब्र से जवाब दिया कि ये चॉइस अल्लाह की चॉइस, और अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने जो है ना उसकी ताकत और उसका इल्म देखकर उसे बादशाह बनाया, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि अल्लाह ही ने उसे ज्यादा इल्म भी दिया है और ज्यादा ताकत भी दी है, और यही दो क्वालिटीज एक लीडर में होनी चाहिए, भले उसके पास माल हो या ना हो, whether he is wealthy or not, he should be healthy physically and he should be intelligent, knowledge, wise, wisdom, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए एक लीडर में। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक अल्लाह जो है ना तमाम बादशाहों को चुनता है जिसे वो चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे अल्लाह चाहता है उसी को बादशाहत अता करता है, वो चुन लेता है, और उसके पास इस बात में वुसअत भी है और इल्म भी है। यहाँ पे बात समझ में आ गई पूरी? यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि तमाम बादशाहों का बादशाह कौन है। यहाँ पे वर्ड बादशाह आया है ना, तो तमाम बादशाहों का बादशाह, द किंग ऑफ ऑल द किंग्स इज अल्लाह सुब्हानहू ताला। और इसकी दलील हमको मिलती है कयामत के दिन। कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि कहाँ है सारे बादशाह, कहाँ है सारे बादशाह, बताओ आज बादशाहत किसकी है? Whose is the dominion today? Whose is the kingdom today? कयामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे कहाँ है सारे बादशाह, बताओ, शो मी योर पावर। अल्लाहू अकबर। और सबकी जबान तो बंद कर दी जाएगी, जवाब कौन क्या देगा, चू तक नहीं कर सकते। तो फिर दुनिया में भी जितने भी बादशाह हैं, हकीकी हाकिम, हकीकी बादशाह, रियल किंग तो अल्लाह ताला ही है। मुल्क का मालिक एक्चुअली में वही है, जिसे चाहे उसे बादशाहत देता है, जिसे वो इल्म और हिकमत वाला, मेहरबानी और रहमत वाला वो अल्लाह। फिर किसकी है मजाल, किसकी है मजाल कि उससे सवाल करे, किसकी है मजाल कि उसके सामने एतराज करे, वो जो चाहे करे। सबसे सवाल करने वाला कोई न कोई है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला से किसी को सवाल करने की ना परमिशन है, ना किसी की औकात है कि वो अल्लाह से सवाल कर सके। और अल्लाह सुब्हानहू ताला की चॉइस कोई रैंडम चॉइस नहीं होती है, किसी की तरफ अल्लाह पार्शल नहीं होता है, बल्कि अल्लाह बड़े फजल वाला, इल्म वाला, नेमतों वाला है। वो जिसे चाहे नवाजे, वो इल्म वाला, खूब जानने वाला है कि कौन किस चीज को डिजर्व करता है, कौन किस चीज का मुस्तहिक
ہے اور کون किस चीज का हकदार है, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। दुनिया में भी हम लोग कभी कभी देखते हैं किसी को और हैरान रह जाते हैं कि इसके पास कैसे इतना माल, इसके पास कैसे इतना पावर या अथॉरिटी। तो तब हमें अल्लाह ही की तरफ अपना फोकस करना है कि अल्लाह knows who deserves which position, who deserves how much wealth and health and status। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस इंसान से इम्प्रेस होने के बजाय अल्लाह सुब्हानहू ताला के हम सामने हम झुक जाए कि बेशक ये चॉइस तो अल्लाह ही की है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये बड़ा वाकया है एंड मैं आपको पूरी स्टोरी पहले बताऊंगी भी नहीं, हम लोग आयत बाय आयत ही जाएंगे ताकि वो सस्पेंस भी बरकरार रहे और आयतों पे हमारा फोकस रहे। इज दैट ओके? जी बाजी। जी आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 248। वक़ाल, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लहुम, लिए उनके, नबीयुहुम, उनके नबी ने क्या फरमाया, इन्ना, बेशक, आयत, एक निशानी। आयत वर्ड नजर आ रहा है जो हम लोग रोज कहते हैं, आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, ये है आयत 248। ये वाला वर्ड इधर आ गया देखो। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, इन आयत, बेशक ये आयत, आयत का मतलब है निशानी, ये निशानी, मुल्की ही, उसके बादशाहत की। यानी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि तालूत बादशाह है। तालूत को अल्लाह ने बादशाह चुना है ना, तो अल्लाह ताला इसकी एक निशानी भी बताएंगे, उसका एक मौजज़ा भी होगा जिससे तुम लोग भी देख लोगे कि हाँ बादशाह तालूत ही है। अल्लाह विल शो यू द साइन। अब समझ में आया निशानी, आयत का मतलब क्या होता है, द साइन। तो साइन क्या है, अन के या अतियकुम, आ जाएगा तुम्हारे पास। तुमको निशानी क्या मिलेगी कि आ जाएगा तुम्हारे पास अत्ताबूतु, ताबूत, एक बॉक्स, संदूक। क्या आएगा तुम्हारे पास, एक बॉक्स आएगा, एक संदूक आएगी। फीही, उसमें, उस बॉक्स में, सकीनतुन, क्या होगा उस बॉक्स में, सकीनतुन, तस्कीन होगी, सुकून होगा, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, कुछ अल्लाह की तरफ से सुकून वाली निशानियां होगी, प्रूफ होगी तुम्हारे रब की तरफ से। और क्या होगा, वह बकीयतुन, बकीयतुन में बाकी वर्ड नजर आ रहा है, बाकी, बकीया कहते हैं लेफ्ट ओवर को, जो कुछ बचा हुआ है। वह बकीयतुन, और बाकी सामान, मिम्मा, उसमें से जो, तरक, पीछे छोड़ा, तरक, पीछे छोड़ा, छोड़ गए, आलू मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की आल, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जनरेशंस के बाद जो वो पीछे छोड़ गए, क्या पीछे छोड़ गए, अपने मौजज़े, अपनी निशानियां। वह आलू हारून, आलू मूसा और आलू हारून का मतलब क्या होता है कि उनकी जनरेशंस। तहमिलुहु, तो वो जो बॉक्स होगा, तहमिलु में क्या वर्ड नजर आ रहा है, हमल। हमल का मतलब क्या होता है, उठाना। तो उठाए हुए होंगे हु, उस बॉक्स को, उस, क्या वर्ड आया यहाँ पर, ताबूत,
ताबूत यानी बॉक्स को उठाए हुए होंगे अल मलाइकतु फरिश्ते। अल्लाह ताला कैसी निशानी भेजेंगे कि फरिश्ते उस बॉक्स को उठाकर लेकर आएंगे जिसमें ये सब कुछ होगा, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की बची हुई निशानियां, यानी उनका असा होगा। और क्या होगा? कुछ मन्ना सलवा का कुछ हिस्सा होगा, कुछ सकीनत होगी, कुछ तौरात की बची हुई निशानियां होगी। और उस बॉक्स को कौन उठा कर लाएगा? फरिश्ते। इन्ना बेशक, फी ज़ालिक इसमें, लआयतन एक निशानी है, देयर इज वन साइन, लकुम लिए तुम्हारे, इन अगर, कुंतुम हो तुम, मुअमिनीन अगर हो तुम मुअमिन ईमान वाले हो, तो तुम्हारे लिए ये निशानी काफी हो जानी चाहिए कि जब ये निशानी आएगी वो बॉक्स फरिश्ते लाकर किसके हाथ में देंगे? तालूत के पास दे देंगे। जिसके पास दे देंगे तो ये क्या होगा? ये साइन होगी कि उसी को अल्लाह ने बादशाह चुना है। अल्लाहू अकबर। तो देखिए इंसान की फितरत इस आयत में नजर आ रही है। ये सरदार खुद बादशाह बनना चाहते थे, इसीलिए अल्लाह के इस नेमत को, अल्लाह के चॉइस से उन्होंने एतराज किया और नबी अलैहिस्सलाम से हुज्जत की कि हम क्यों माने, किसने बनाया तालूत को, क्यों बनाया भाई बादशाह, हम क्यों उसे अपना लीडर माने। तो नबी अलैहिस्सलाम ने, वो जानते थे कि ये सुनने वाले नहीं है, इसीलिए आपको पता है ना बनी इसराइल का भी यही हाल था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कोहे तूर पर जा रहा हूँ और तौरात नाजिल होने वाली है, तो कहते कि हम कैसे मान ले अल्लाह को बगैर देखे, तुम अल्लाह से दुआ करो ए मूसा कि वो हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला अपनी आंखों से देख ले। तो वो लोग जैसे बनी इसराइल, सेम टू सेम वही है ये भी जनरेशन, कि वो अपने नबी से इसी तरह हुज्जत कर रहे थे। तो फाइनली नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि ये होगी निशानी। जस्ट इमेजिन कि फरिश्ते आएंगे उस ताबूत को लेकर और उसमें क्या क्या होगा? उसमें होगा मूसा अलैहिस्सलाम का असा, तौरात की कुछ तख्तियां, और इसे कहा गया है सकीनत अल्लाह की तरफ से। मन और सलवा, कुछ मूसा अलैहिस्सलाम की मीरास, कुछ कपड़े, उनकी कुछ निशानियां, जिन्हें देखकर नबी की नबुव्वत और तालूत की बादशाहत का उनको यकीन हो जाए। उस ताबूत को देखकर फिर उन सरदारों को यकीन हो जाए नबी की नबुव्वत का भी और तालूत की बादशाहत का भी। अल्लाहू अकबर। तो वैसे ही हुआ कि फरिश्ते उस ताबूत को लेकर आए। फरिश्ते तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन बॉक्स नजर आ रहा था और उस बॉक्स को तालूत के पास पहुंचा दिया गया, जिससे अब इन लोगों ने तालूत को फिर अभी बादशाह उनको मानना ही पड़ा। ओके, यहाँ पर अभी हम लोग रुकेंगे इंशाल्लाह। और उन लोगों को किस चीज का वास्ता दिया उनके नबी ने कि अगर तुम ईमान वाले हो, ईमान का मतलब क्या होता है? गैब पर ईमान लाना। लेकिन ये लोग तो खुल्लम खुल्ला इन्होंने मौजज़े देखे, खुल्लम खुल्ला नबियों से मौजज़े देखे, तभी भी इनका ईमान इतना कच्चा था। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि अगर हम भी अल्लाह की हर आयत पर अगर हम ईमान लाने लगे
تو وہی ہمارے لیے کافی ہے. کیا ہم بھی اللہ کو دیکھنے کے بعد، کل ہم نے پڑھے سورہ تکاثر میں کہ کیا تم جہنم کو دیکھ لینے کے بعد سدھرو گے؟ تو بعد میں سدھر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. آج تمہارے پاس قرآن ہے، اسی کو پڑھ کر سمجھ کر اگر ہم ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ہمارا عمل اللہ کے پاس قبول ہے. ورنہ اگر کویشچن مارکس ہے، ڈاؤٹس ہے، پڑھ رہے ہیں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس پر ہم سے پوچھ ہوگی، کیونکہ علم کتنا حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا، یہ کویشچن بھی پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.